Hello guys, welcome to the Brilliant Coaching Institute. This is me Ankit Mariwal. Guys, there is a good news for you that we have started the Spanish class on our YouTube channel. We have uploaded the first video on our YouTube channel. If you want to watch that video, go to the description link. And guys, if you would like those videos which I have uploaded as well as the Spanish videos which I'll upload, then please like the channel, subscribe as well as share it. Okay, so guys, today I'm going to teach you about the all other uses of could. Okay, so before starting about the could, let me approach to the phrases. Okay, so the first phrase is bone of contention. Bone of contention means the subject of a dispute. Okay, as like I already said you, there was a word apple of discard. Apple of discard means also same as like the bone of contention, यानी कोई भी झगड़े की वस्तु या कोई भी झगड़े की वजह, ठीक है, कोई भी कारण, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बोन ऑफ कंटेंशन. ओके, नेक्स्ट वन, बोन और ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मीन्स हिडन ब्लेसिंग. इसका मतलब क्या होता है, ऐसी ब्लेसिंग जिसका हमें पता ही ना लगे, जो हिडन हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बोन या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. ओके, नेक्स्ट वन, बॉसम फ्रेंड. बॉसम फ्रेंड मीन्स वेरी क्लोज फ्रेंड. देखो, हम बहुत बार बोलते हैं लंगोटिया यार, यार वो तो मेरा लंगोटिया यार है, ठीक है, तो उसके लिए हम बॉसम फ्रेंड वर्ड का यूज करते हैं. ओके, सो दिस फ्रेज विल बी यूज्ड फॉर द बॉसम, for those friends which are those who are very close. Okay, so next one, break the ice. Break the ice means break the silence or to start a conversation. Means break the ice का meaning होता है चुप्पी तोड़ना, यानी बोलने की शुरुआत करना. As like Albert Einstein have spoken after a long time. Okay, and when he was taking the tea, or when he was taking the soup, okay, you might have listened about him. When he was taking the soup, at that time he had broken the ice. Okay, means उन्होंने तब अपनी चुप्पी तोड़ी, तब बोलना शुरू किया. Okay, for that matters we can use the break the ice. Next one, breathe once last. Breathe once last means last, अंतिम सांस ले लेना, यानी died. Okay, means to pass away और to die, यानी मर जाना. ठीक है, तो ये मीनिंग्स इन सभी फ्रेजेस की थी. सो गाइस, नाउ लेट वी अप्रोच टू द यूज ऑफ कुड. ओके, तो कुड के मैंने कुछ यूज लास्ट वीडियो के अंदर बता दिए हैं, तो इफ यू वांट टू वॉच दोज वीडियोज प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक. ओके, and please subscribe the channel for our upcoming videos. Guys, in the last lecture I taught you about the many uses of could. Okay, so in that lecture I taught you about the to show high respect, okay, to show the possibility 99%, to show the ability, capability as well as power, and the last one I taught you about the simple past single sentences. Okay, now we will deal with the another uses of could. Okay, so the first use is prohibition. Prohibition means वर्जित होना. वर्जित होने का मतलब किसी चीज के लिए मना कर देना या खत्म हो जाना. ठीक है, तो वर्जित होना, उस जैसे कि इसके सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जैसे यू कुड नॉट एंटर इनटू माय रूम विदाउट माय परमिशन. ओके, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं यू कुड नॉट एंटर इनटू द लेडीज कंपार्टमेंट, or we can say you could not sit on the senior citizens seat. Okay, so these kind of sentences can be formed under the prohibition and by the uses of could. So next one is impossibility. So impossibility की अगर हम बात करें तो impossibility की बात करते हैं, जैसे we could not help you anymore. In the last video इससे ज़्यादा मतलब नहीं कर सकते about the, यहाँ पे impossibility told about the could, यानी कि कोई चीज जो possible ना हो,
पॉसिबिलिटी उसको हम 99% के अंदर लेके आते हैं। possibility के लिए बता इसके दिया अलावा मैंने जैसे हम आपको, बोल सकते हैं पावर she could not कैपेसिटी marry के me, लिए बता वो दिया था, मुझसे शादी ठीक है। नहीं कर इसके सकती। अलावा टू गिव द Okay, हाई रिस्पेक्ट, या हम जैसे बोल सकते हैं टेक द he could not परमिशन write द हाई on the board रिस्पेक्ट, परमिशन because लेने के लिए हाई his रिस्पेक्ट writing is very एंड bad। वन मोर, तो वो दैट इज द सिंपल पास्ट। शायद Okay, वो sentence बोर्ड with पे the नहीं simple लिख सकता, past। तो कुड का ठीक है, यूज तो सिंपल यहाँ पे पास्ट हमारी क्या होती है, इम्पॉसिबिलिटी आ जाती है। नाउ शायद वी नहीं विल आएगा टॉक इसके अबाउट द डिफरेंट नेक्स्ट वन आ जाता है Another कंपल्सन। different- कंपल्सन मतलब होता है मजबूरी, मैटर्स। ठीक है। अब अगर कंपल्सन की another बात different करें ways तो by which इसके we अंदर can क्या होता है, make जैसे the कि use अगर of मैं ये food। बोल दूं ओके, he could not help himself सो प्रोहिबिशन, laughing प्रोहिबिशन मींस क्या on होता है? him प्रोहिबिशन while मतलब when होता he है sneeze। वर्जित होना जब किसी वह चीज का, छींकता है यानी तो कि वो अपने जैसे आप कि अगर मैं ये बोल को देता हूँ हंसने से नहीं रोक कि पाता है या नहीं you रोक could सकता not है। travel इसके अलावा जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि in I the could not ladies help department, myself ladies to compartment, watch the Okay, movies। आप लेडीज कंपार्टमेंट to के stop अंदर watching the ट्रैवल movies। नहीं कर सकते। मैं अपने आप को मूवी देखने से अब नहीं देखो रोक सकता। बहुत जगह पे ठीक हम है। इसका तो इस तरह के सेंटेंसेस हम कंपल्सन प्रेजेंट के में भी यूज करते हैं अंदर और फ्यूचर के बनाएंगे। अंदर भी ठीक यूज है। करते हैं। इसके बाद ठीक है। नेक्स्ट वन आ जाता है नरेशन। ठीक। अगर नरेशन की बात करें तो जैसे अगर मैं ये बोल देता हूँ he told to him that you could do it, तुम इसको कर सकते हो, ठीक है। you could do it, तुम इसको कर सकते थे। ओके, या अगर मैं ये बोल देता हूँ जैसे द चाइल्ड सेड दैट दे कुड ऑल्सो फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, तो यानी कि बच्चे ने कहा था कि वे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, या कर सकते हैं, ठीक। तो इस चीज के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट सेंटेंस। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट सेंटेंस की बात करें तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि अगर इसके जो रूल्स हैं, रूल्स बता देता हूं पहले मैं, जस्ट अ मोमेंट। सो क्या था नेक्स्ट वन, कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट सेंटेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट सेंटेंस। अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ पास्ट सेंटेंस की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर हम ये बोलते हैं कि वह रास्ता भटक गया था इसलिए समय पर नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो यानी कि जैसे मैं लिखता हूं वह रास्ता भटक गया था इसलिए समय से नहीं पहुंच पाया, समय से नहीं पहुंच पाया, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस के लिए हमारे पास 2 रूल्स होते हैं, ठीक है, 2 रूल्स होते हैं। पहला क्या होता है, इसके अंदर पास्ट इंडेफिनेट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब फर्स्ट एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। फर्स्ट ये रूल होता है और सेकंड रूल होता है इसका पास्ट इंडेफिनेट प्लस सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस होते हैं, ये इसके रूल्स होते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन के लिए पास्ट के जो कॉम्बिनेशन है इसके लिए ये रूल्स होते हैं। अब अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं, जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट बनाऊंगा, सबसे पहले वह रास्ता भटक गया था इसलिए समय पर नहीं पहुंच पाया, तो इसके लिए क्या होगा, ही लॉस्ट द वे, he lost the way so that he could not reach on the
टाइम. ओके, ही कुड नॉट रीच ऑन द टाइम. तो इसका मतलब क्या है, आप इस तरह के सेंटेंसेस इसके अंदर फॉर्म कर सकते हो. इसी चीज को, इसी सेंटेंस को आप इससे भी बना सकते थे. आप लिख सकते थे ही लॉस्ट द वे सो दैट ही कुड नॉट हैव रीच्ड ऑन द टाइम. ओके, कुड नॉट हैव रीच्ड ऑन द टाइम. तो इस तरह से भी आप इसके सेंटेंसेस बना सकते हो. ठीक है. तो इसके बाद नेक्स्ट वन क्या था, नेक्स्ट वन था आपका इमेजिनरी एक्शन एंड कंडीशनल सेंटेंसेस. ओके, तो इमेजिनरी एक्शन और कंडीशनल सेंटेंसेस के सेंटेंस के लिए हमारे पास एक रूल होता है, तो उस रूल से हम उसको देखेंगे. सो द रूल इज, रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इफ प्लस पास्ट परफेक्ट. पास्ट परफेक्ट. सो गाइस, इस रूल का यूज करते हुए हम इसके सेंटेंसेस बना सकते हैं. ठीक है. तो पहला इमेजिनरी एक्शन के लिए, ये इमेजिनरी एक्शन या कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए. ठीक है. तो इसके लिए जैसे हम बोलते हैं काश या यदि, काश या यदि हमारे अच्छे नंबर आए होते, यदि हमारे अच्छे नंबर आए होते तो हमारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो सकता था. अच्छे कॉलेज में हो सकता था. ठीक है. तो ये आ जाएगा. अब जैसे इसकी इंग्लिश बनानी है, तो इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देखो. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अगर हमारे अच्छे नंबर आए होते तो हमारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो जाता. तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट हैं, तो वी, ये वाला, could get, we could have got admission in the reputed college okay, if we got sorry, past perfect, if we have got good marks, okay, good marks. सो इस तरह से हम इसके सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. इसके अलावा अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे मैं ये बोलता हूँ, वी कुड हैव चेंज्ड आवर इंटेंशन टूवर्ड्स इट इफ वी हैड बीन गाइडेड वेल. यानी अगर मैं बोलता हूँ जैसे कि वी कुड हैव चेंज्ड आवर इंटेंशन